Welcome back, students of class 7th in social studies period. Today we will do exercise and question answers of part 2nd, lesson 2nd, Sweets. Part A, tick the correct option. First, the wishes of the people are called dash. Options are rule of law, public opinion, legislature, democracy. Right option is public opinion. Second, no one is above the dash, not even a king or any elected president. Options are democracy, law, judiciary, head. Right option is law. Third, the value of each vote is dash, whether it is of the rich or the poor. Options are different, important, equal, comparable. Right option is equal. Fourth, the dash is concerned with the making of law, executive, legislature, judiciary, or president. Right option is legislature. Fifth, all dash are treated with equal respect in India as it is a secular country. Options are people, women, governments, religions. Right option is religions. Part B, write T for true and F for false against the statements. Number 1, in a democratic form of government, rules and consent of the peoples are not important. क्योंकि मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में उनके रूल्स जो होते हैं और कंसेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. सेकेंड, इफ़ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट दे कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. थर्ड, द एग्जीक्यूटिव डील्स विद द एक्चुअली मेकिंग ऑफ द लॉ. ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. क्योंकि वो लेजिस्लेचर्स बनाती हैं लॉ को. फोर्थ, इट इज़ असेंशियल टू अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस सोशल एंटिटीज़ इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट द पीपल. ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. फिफ्थ, डेमोक्रेसी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन्स. ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. टर्न द पेज. पार्ट सी, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन तो मैं टिक करवा दूंगी और कुछ लिखवा दूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ओपिनियन? दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 163 अंडर द हेडिंग पार्टिसिपेटिंग पीपल. ये सेकेंड लास्ट लाइन से स्टार्ट करना है. द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर बाउंड टू रिफ्लेक्ट द विशेज ऑफ द पीपल, दैट इज द पब्लिक ओपिनियन. Question second, why are the participation and the consent of the people important in the democratic form of government? This answer is also on page number 163 under the paragraph participating peoples. ये start से ही है. In a democratic form of government, participation and consent of the people is important since the people have the right to express their opinions. Question third, in India what are the three organs of the government? This answer is on page number 164 under the heading decision making mechanism. ये आपकी फोर्थ लाइन है. The three organs of the government are the legislature, the executive and the judiciary. Question fourth, name the various factors which contribute in a society diverse. बेटा ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको ध्यान से देख लेना. मैं रीड कर रही हूँ. रीजन्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट, कल्चर, genders and economic background are factors which contribute in a society diverse. Question fifth, who empowers protection and education about their social, political and economic rights to the people in India. इस आंसर के लिए आपने खाली हु को काटना है, तो आपने ऊपर लिखना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फिर बाकी पूरा वैसे लिखना है. एम्पावर्स एंड protection and education about their social, political and economic rights to the people of India. Part D, give long answers for the following questions. First, how does the participation of the people play an important role in a democracy? First long answer is on page number 163
अंडर द हेडिंग पार्टिसिपेटिंग पीपल्स। ये सेकंड पैराग्राफ से आपने शुरू करना है, एक कंट्री सिस्टम से लेके पब्लिक ओपिनियन तक, एक कंट्री सिस्टम से लेके पब्लिक ओपिनियन तक। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ इन डिटेल। दिस आंसर इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 163 अंडर द हेडिंग फॉर्मल इक्वलिटी। ये आपकी 5th लाइन है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है द रिच और द पुअर तक। यहाँ से शुरू करना है, नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन से, और यहाँ तक करना है ऑफ द रिच और द पुअर। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन इंडियन डेमोक्रेसी। दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 164 अंडर द हेडिंग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स से लेके, और ये पूरा लिखते हुए आपको नीचे आना है और यहाँ तक लिखना है, द जुडिशरी एनफोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। ऊपर से पूरा स्टार्ट करना है आपको और ये लिखते यहाँ तक आना है, जुडिशरी एनफोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन डिग्निटी एंड इट्स वायलेशन। दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 164 अंडर द हेडिंग एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। इस आंसर को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, वी हैव रीड दैट कास्ट, यहाँ से लेके डिग्निटी इज़ वायलेटेड, पूरा पैराग्राफ है ये, डिग्निटी देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड यहाँ तक। स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। योर होमवर्क इज़ डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन स्विक्स नोटबुक। थैंक यू।